1st of July, Neha commenced business with cash, so that is cash account debit to capital account. बराबर है? Then she brought her goods as the capital in the beginning. She brought her goods as capital in the beginning. Now remember, capital, I told you, it needn't be only in the form of cash. It can be in any other form. It can be in the form of any other asset or goods or anything. Okay, now you try to use your brain and think what should be the two accounts involved over here. Goods introduced by Capital Goods account and capital account. goods and capital. Goods and capital. Instead of cash and capital, it will be goods and capital. Why? Because She brought goods. business is not retrieving cash, business is receiving goods, right? So goods and capital. अभी goods के जगह कौन सा अकाउंट? स्टॉक अकाउंट यूज करने का, स्टॉक, नॉर्मल स्टॉक. ओनर कभी लाता है ना, तो गुड्स भी लिख सकते हो या ओनली स्टॉक भी लिख सकते हो. ओके, गुड्स इंट्रोड्यूस बाय ओनर लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग नहीं लिखते क्योंकि वो ज्यादा बार नहीं लाता है. ओनर हार्डली एक आध बार कभी कैपिटल लाएगा, 1-2 साल में, 3 साल. वी कैन राइट ओनली गुड्स अकाउंट ओवर हियर, so no problem at that. Only goods account or stock account you can write. Okay, goods account या stock account. अच्छा, तो goods या stock is what type? Real. So rule applicable will be what? Debit what comes in and Credit the giver. credit the giver. बराबर है? So debit what comes in and credit the giver. So entry क्या बनेगा अपना? Stock या फिर goods account debit. Better if you write stock या goods account debit to capital account. Stock या goods account debit to capital account, that is 40,000. Stock या goods account debit to capital account, that is 40,000, being stock introduced in business as capital. आपको शुरू में बताया था, याद है? हमारा मोबाइल फोन का बिजनेस है और हमने घर पे 2-3 मोबाइल फोन पड़े थे जो लेके आए थे. ऐसा भी हो सकता है. कैपिटल है, याद आया आपको? तो सेकेंड हैंड बिक जाएंगे. तो स्टॉक आ रहा है एंड कैपिटल इज द गिवर. ओके, वैसे ही आप अगर घर से फर्नीचर लेके जाते हो बिजनेस, तो क्या होंगे दो अकाउंट्स? फर्नीचर अकाउंट, Furniture and capital. फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल. बराबर है? तो एयर कंडीशन लेके आया तो एयर कंडीशनर टू कैपिटल, कंप्यूटर लेके आया तो कंप्यूटर टू कैपिटल. जो लेके आया, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड ओनर इज द गिवर, सो क्रेडिट द गिवर. और मॉडर्न कंसेप्ट भी दोनों पे अप्लाई कर सकते हो. बिजनेस में क्या हो रहा है? मॉडर्न कंसेप्ट दोनों सेम है, ऊपर वाला और ये वाला. एसेट्स आर इंक्रीजिंग, राइट? कैश एंड गुड्स आर एसेट. तो एसेट्स आर इंक्रीजिंग इन द बिजनेस, सो दे शुड बी डेबिटेड. एंड कैपिटल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? Increasing. इंक्रीजिंग. जितना ओनर कैपिटल लाएगा उतना कैपिटल बढ़ेगा ना बिजनेस. तो कैपिटल इज आल्सो इंक्रीजिंग, so credit. Capital is also increasing, so credit. Seventh one, Krish Bhanushali sold goods to Pooja on credit. Tell me the two accounts. Krish sold goods to Pooja on credit. Sir, sales account and puja account. Very good. Sales and Pooja account. What are the types, Krish? Types: puja account is personal and Barabar. sales account is nominal. Sorry, Nominal. sales. Yeah, Yes, बराबर yes. है, nominal. पूजा को क्या रूल अप्लाई करोगे? To puja, sold goods. Puja is credit. I mean puja. Credit No, पे sold. देता है. Yes, credit the giver. Credit the giver. Is Pooja the giver? पर्सनल रूल है. No, sir. Sorry. Debit the receiver. Is Debit the receiving. receiver. She is Yes. receiving. And sales क्या होगा? Sales. Income Credit है ना? all incomes and gains. Incomes and gains. Credit all incomes and gains. Okay, ध्यान दो अभी. Pooja will be debited, account debit to sales account.
Sales is credit all incomes and gains. Okay, Pooja is the receiver and credit all incomes and gains, and the amount is 65,000. अच्छा 65,000 हो गया, और इधर नरेशन लिख देते हैं हम लोग, being goods sold to Pooja on credit. अब मुझे जरा सोच के बताओ कि यहाँ पर मैं आपको ऐसे दे दूं कि सोल्ड गुड्स टू पूजा ऑन क्रेडिट ना दिया हो, सोल्ड गुड्स टू पूजा सिर्फ इतना दिया हो, सोल्ड गुड्स टू पूजा, तो भी क्रेडिट ही होगा, तो भी क्रेडिट ही होगा, तो भी क्रेडिट ही होगा। फिर आपको दो कंडीशन याद है, वो पार्टी का नाम होना चाहिए और फॉर कैश, फॉर चेक, बाय कैश, बाय चेक कुछ भी नहीं होना, सो कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो इट इज व्हाट आर द टू अकाउंट देन? पूजा एंड स्टिल पूजा एंड सेल्स। ये आपके होमवर्क में था, परचेज गुड्स फ्रॉम मोना एंड सोल्ड गुड्स टू दिने। ओके, तो कीप दैट इन माइंड। 7th of July को हो रहा है ये। Then 8, purchase a horse for cash. Purchase a horse for cash. Yes, horse को क्या बोला जाता है? Livestock account and cash. Animals. Remember, animals used in the business are livestock. Asset. So what are the two accounts now? Livestock account and cash account. Livestock and cash. Livestock and cash. Livestock is Real. real. Cash real. Sir, we cannot write horse account. हॉर्स नहीं लिखते हो जनरली, जो भी एनिमल्स होते हैं ना, तो उसके लिए एक कॉमन अकाउंट यूज हो जाता है, दैट इज लाइफ स्टॉक। तो बेटर यूज लाइफ स्टॉक। तो लाइफ स्टॉक इज एसेट, रियल, कैश इज एसेट। क्या हो रहा है? लाइफ स्टॉक आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, कैश जा रहा है। तो क्या बनेगा आपका? लाइफ स्टॉक अकाउंट डेबिट टू व्हाट? कैश। लाइवस्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, मॉडर्न कंसेप्ट भी कर सकते हो आप अप्लाई। लाइवस्टॉक बढ़ा तो डेबिट, लाइवस्टॉक एसेट बढ़ा तो डेबिट, कैश एसेट घटा तो क्रेडिट। दिस इज बीइंग हॉर्स परचेज, बीइंग हॉर्स परचेज। दैट वाज ऑन 8th of July. 17th of July. 17th of July. Amit's account, which is overdue, is closed as the amount is not recoverable. Bad debts. Bad debts account It's account and Amit account. Bad debts account and Amit account. Capital The cash account. Amit Cash. Cash account. Amit capital account. Assets and cash. will be Amit account. Or I It will would be Amit. It will be Bad Amit. debt and Amit. Bad debt and Amit Amit. and cash. No. See. कैसे होता है ये? मैंने अमित को गुड्स बेचा 10,000 का, तो मुझे अमित से कितना लेना बाकी है? 10,000। अभी अमित ने मुझे उसमें से 4,000 पे कर दिया। आई रिसीव्ड कैश फ्रॉम अमित, तो कैश अकाउंट डेबिट टू अमित अकाउंट, स्टोरी ओवर 4,000 का। अभी और कितना लेना बाकी है? 6,000। अब वो 6,000 के लिए वो आया मेरे पास, वो बोला कोरोना है, धंधा बंद हो गया, मैं नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं गाँव जा रहा हूँ, मैं आपको 6,000 रुपए नहीं दे। तो अमित ने मुझे वो 6,000 रुपए नहीं दिए, तो फॉर मी दैट अमाउंट इज कॉल्ड बैड डेट्स, दैट इज द लॉस, इररिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम डेटर, रिमेंबर? So think about it. Will I pay anyone that 6,000? No, I'm not paying anyone. In fact, I'm receiving less. I'm receiving less. That's why it is a loss. Okay. So now you can think it in this way कि आपको पैसे नहीं मिले ना 6,000, मिल जाते, समझो आपको अमित पैसे दे देता, तो एंट्री क्या होती है आपकी? कैश अकाउंट टू अमित अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन? अमित क्रेडिट द गिवर, राइट? मिले नहीं तो आपका नुकसान हो गया, तो कैश की जगह क्या हो जाएगा? बैड डेट्स, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस। एंड अमित इज नॉट द गिवर, स्टिल वी आर क्रेडिटिंग हिज अकाउंट जस्ट टू शट इट डाउन, क्योंकि आगे कोई पैसा नहीं आने वाला। इधर थोड़ा आपका ट्रेडिशनल का रूल बैठेगा नहीं। क्यों नहीं बैठेगा? क्योंकि बैड डेट्स तो डेबिट करना है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस,
बट अमित को क्रेडिट करना है, क्रेडिट द गिवर नहीं है, फिर भी क्रेडिट करना है। इसमें आपका मॉडर्न कंसेप्ट बराबर फिट होगा। देखो क्या हो रहा है मॉडर्न कंसेप्ट में, व्हाट इज बैड डेट्स? Expense. एक्सपेंस। बैड डेट्स आर एक्सपेंस, लॉस। एक्सपेंस बढ़ा कि कम हुआ? Increase. डेबिट होना चाहिए। Yes. और अमित कौन था? Liability. एसेट एसेट, डेटर था। हमने उसको गुड्स बेचा था तो ही वाज अवर डेटर, उससे पैसा Asset, लेना yes. था तो इट वाज अवर एसेट। अच्छा, अमित से पैसा लेने का बढ़ा कि कम हो गया? कम हुआ, नहीं देने वाला है। Increase. क्या? हुआ। गया। Decrease 6,000 हुआ, तो मिलने decrease वाले हुआ। थे। अभी नहीं लेने वाले। 6,000 लेना था ना, अभी 0 हो गया तो डिक्रीज हो गया ना 6,000। डिक्रीज्ड बाय 6,000, योर एसेट डिक्रीज्ड बाय 6,000, गॉट इट? So credit. सो क्रेडिट। तो ऐसा सिचुएशन हो रहा है। तो बैड डेट्स क्या हो रहा है? बैड डेट्स आप किसी को पे नहीं करते हो, तो बैड डेट्स में आप किसी को पैसे दे नहीं रहे हो, आपको कम पैसे मिल रहे हैं, ऐसा सीन हो गया। आप इसको रिलेट कर सकते हो, समझो फर्नीचर जल गया, फर्नीचर बर्न्ड बाय फायर, देन व्हाट आर द टू अकाउंट? Lost by fire account. एंड Furniture. फर्नीचर। तो लॉस बाय फायर इज अ लॉस, तो डेबिट। एंड फर्नीचर गया, अभी पैसा नहीं आने वाला है। आर यू गेटिंग दैट? सेम वे डेटर, डेटर भी एसेट था, फर्नीचर भी एसेट था। फर्नीचर 10,000 का था, डेटर 10,000 का। फर्नीचर जल गया, 10,000 का नुकसान। डेटर बैड हो गया, 10,000 का नुकसान। समझो 10 का 10 नुकसान, 10 का 10 नहीं दिया। आर यू एबल टू रिलेट इट? तो बैड डेट्स है या लॉस है, इन सब चीजों में आपका कैश नहीं जा रहा है बॉस। कैश यू आर नॉट पेइंग इट टू एनीवन, आपका कोई और एसेट जा रहा है, some other asset is going out. Okay, so these type of expenses are called as non-cash expenses, a very important term. Non-cash expense कहा जाता है इसको? Okay, there are two types of expenses in the business. अभी तक हमने सीखा ना expenses, आप हर साल जो पे करते हो उसको expense कहा जाता है। दो तरह के expense होते हैं, एक होता है cash expense, एक होता है non-cash expense. Can you give me an example of cash expense? Electricity. सैलरी, Purchases, Salary. wages, telephone expense, rent, electricity expense, interest. Are you able to understand the meaning? Repair. Repairs. Cash expense का मतलब समझ में आ रहा है आपको? Debit that expense and cash is going out, right? Because you pay cash for all these expenses. So credit what goes out. But if I tell you कि debtor bad हो गया, it's a bad debts. तो bad debts के लिए will I pay someone क्या? अरे मेरे debtor ने मेरे को 6,000 रुपया नहीं लिया, ये ले 6,000 रुपया. Am I going to pay anyone 6,000 rupees? No one. तो यहाँ पे bad debts तो expense है ही, debit all expense. But cash is not going out. That debtor gone out. Debtor went. It's gone. Debtor is no more in the books. Are you understand? So when you pay any expense through cash, जब आप कोई expense के लिए cash चुकाते हो उसको cash expense बोलते हैं। लेकिन जब कोई expense के लिए कोई और asset कम हो जाता है, cash के अलावा कोई और asset decrease हो जाता है, उसको बोलते हैं non cash expense। उसको बोलते हैं नॉन कैश एक्सपेंस। समझ आ रही है बात? कैन यू गिव मी अनदर एग्जांपल ऑफ नॉन कैश एक्सपेंस? हमने एक तो देखा लॉस बाय ट्रांजिट, लॉस बाय फायर, हमने देखा था ना गुड्स लॉस बाय फायर। तो क्या हुआ? लॉस एक्सपेंस एंड गुड्स जा रहा है ना बिजनेस में से, कैश नहीं जा रहा है, गुड्स जा रहा है। So it was a non cash. Did you get the Floods in go down. yeah, sorry. Floods in go down. Floods, all types of losses basically. Loss by fire, loss by flood, loss by transit, या आपके जितने लॉस है उसमें कोई ना कोई एसेट ही जा रहा है, कैश नहीं जा रहा है आपका। तो ये सब नॉन कैश एक्सपेंस, नॉन कैश। So is goods withdrawn non और पर्सनल यूज, yeah पर्सनल यूज में तो वो एक्सपेंस है ही नहीं, वो तो घर पे चला गया। एक्सपेंस कभी होगा जब
बिजनेस में But for the business, it's an expense only, right? Because it's going out of the business. नो सी दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. अगर वो घर पे लेके जा रहा है तो वो बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है ना, इट इज ड्रॉइंग्स. इट विल बी रिड्यूस फ्रॉम कैपिटल ओनली बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंस. मतलब समझो आपने 10,000 का गुड्स जल गया और 10,000 का गुड्स विड्रॉ किया, तो 10,000 का जो विड्रॉ किया वो ड्रॉइंग्स है, कैपिटल से कम कर दोगे, बट वो लॉस नहीं है बिजनेस का, वो तो ओनर लेके जा रहा है. जो जल गया वो बिजनेस का लॉस है. मतलब आप जब एंड में प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करोगे तो लॉस वाला कंसिडर करोगे, ड्रॉइंग्स वाला नहीं करोगे, क्योंकि ऑलरेडी आपने कैपिटल में से माइनस कर ही दिया है. बिजनेस का sales return सेल्स रिटर्न इज or non-cash expense because it is a reduction of income. रिडक्शन ऑफ इनकम है. वो रिडक्शन ऑफ इनकम है, इट्स नॉट बेसिकली एन एक्सपेंस एज सच, इट इज रिडक्शन ऑफ इनकम. यू कैन कंसिडर इट एज रिडक्शन ऑफ इनकम. नॉन कैश एक्सपेंस में क्या होएगा, कोई आपका एक्चुअल एसेट ही चला जाएगा परमानेंटली फ्रॉम द बिजनेस, यू विल हैव टू बेयर दैट लॉस. So depreciation is what? वेरी गुड. आई वाज थिंकिंग कि कोई ये बताए. डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस. डेप्रिसिएशन इज एन एप्ट एग्जांपल ऑफ नॉन कैश एक्सपेंस. देखो आपने कंप्यूटर खरीदा 50,000 रुपीज का, एक साल यूज किया, उसका वैल्यू अभी भी 50 है, अभी घट जाएगी, समझो 40,000 हो जाएगी, तो कितने से कम हुआ, 10,000 रुपीज से कम हो गया. तो 10,000 रुपीज इज एक्सपेंस, दैट इज डेप्रिसिएशन. दैट इज डेप्रिसिएशन. ओके, तो डेप्रिसिएशन का एंट्री क्या होता है, डेप्रिसिएशन डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, खर्चा हो गया. Account. डिड यू पे कैश टू एनीवन, दैट 10,000 डिड यू पे टू एनीवन? नो. क्या घटा, Asset. Asset. कंप्यूटर घटा, कोई और एसेट घटा. So that is another example of non-cash expense. Sir, goods theft. हाँ, theft बोला ना, losses, all types of losses. Sir, goods withdrawn for office use. Goods withdrawn for office मतलब वो तो ऑफिस में ही पड़ा है. गुड्स को ऑफिस यूज के लिए कैसे विड्रॉ करोगे? कैश को आप ऑफिस यूज के लिए विड्रॉ कर सकते हो बैंक से. गुड्स तो ऑफिस में ही पड़ा है, बिजनेस में ही पड़ा है. गुड्स विड्रॉन फॉर ऑफिस यूज होता ही नहीं है कुछ. कैश विड्रॉन फॉर ऑफिस यूज होता है क्योंकि कैश आपका बैंक में पड़ा हुआ है. गुड्स तो आपका बिजनेस में ही है ना, ऑफिस में. सो ये इंपॉर्टेंट है आपके आगे वाले कंसेप्ट्स के लिए. कैश एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस मीनिंग समझ लेना. बढ़े आगे. बैड डेट्स. अच्छा, तो बैड डेट्स का क्या एंट्री होगा अभी? इट विल बी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस. ओके, बट रिमेंबर यहाँ पे डेटर कुछ दे नहीं रहा है, फिर भी उसका अकाउंट बंद करना है, आगे कुछ पैसा नहीं आने वाला है. वी आर शटिंग द अकाउंट. तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू अमित अकाउंट, डेटर अकाउंट. ओके, डेटर कम हो गया. So what if he gives back the money after some time? Sorry, what if he gives back the money? So it is like our new income only then. We are not expecting now. हमने उसका अकाउंट बंद कर दिया ना, तो we are not expecting only कि वो आगे कुछ पैसा देगा. So sir, there was an account named Bad Debts Recovered. हाँ, I'm coming to that only. We were not expecting that he will pay, but suppose then if he pays, so that's a new income, and that income is called bad debts recovery. That income is called bad, and that entry is like your commission only. Sorry, Yashvi, you asked something. Bad debts recovery is like your new income. Commission आपका income होता है ना, rent आपका income होता है, interest आपका income होता है, तो वैसे bad debts recovery is income. So that time what entry will pass? Cash account debit. Debit what comes in? Bad debts recovery, credit all income sent. अभी अमित का अकाउंट बंद हो चुका है. अमित से हमने को कोई लेना देना नहीं. हम तो भैया मोह माया त्याग चुके हैं. अमित पैसा देने वाला नहीं. अमित अपने को कोई पैसा देगा नहीं. That is what we are thinking. Okay? And sir, if I am in a poultry business, then the hens will be livestock or goods? Livestock. अच्छा, पोल्ट्री के लिए गुड्स हो जाएगा because you are dealing. पोल्ट्री के लिए it is good. Can't we deduct this from the capital account? What bad debts? Yes, means अल्टीमेटली होने ही वाला है. हर एक एक्सपेंस कैपिटल में से डिडक्ट होता ही है ना. आपको बताया था, याद है? अमित अकाउंट की जगह डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट कर सकते हैं. नहीं, अमित के जगह नहीं, बैड डेट्स के जगह. लॉस हुआ है ना, तो कैपिटल कम होगा ना बिजनेस में. अमित क्या है? अमित तो डेटर है. डेटर एसेट है, तो
एसेट साइड डेटर कम हुआ और लायबिलिटी साइड कैपिटल कम हो जाएगा ड्यू टू द लॉस, समझा? तो आपका एसेट कम हो रहा है, यहाँ पे डेटर कम हो रहा है। जैसे आपका फर्नीचर लॉस्ट है तो फर्नीचर कम हो गया ना, वैसे आपका ये है अपना बैड डेट्स है तो आपका डेटर कम हो जाएगा। या Sir, how to fit this in the traditional system? it cannot fit, that is the flaw of traditional system. So modern system में bad debts is expense. Debit all expense. And, Sorry, debit क्या? Expense बढ़ा. हाँ, तो debit. Expense increase and Amit is personal. Asset. Amit Asset decrease. Decreases. So correct. Asset decreases. Correct. Modern में all the things will fit every time. Traditional में कभी-कभी ये flaw होता है. Okay. इसमें जैसे एक flaw है. Amit is not giving anything. Still we are crediting to shut down his account. Okay. So this is 7,000 rupees. Being bad debts from Amit recorded. Bad debts from Amit recorded. अच्छा, बाद में पैसे तो will you credit again Amit? Amit is the giver. Bad debts recover हुआ तो क्या हम लोग वापस अमित को क्रेडिट देंगे? क्या अमित का अकाउंट है अपने बुक्स में अभी? उसको डायरेक्ट कैपिटल में ऐड कर देंगे। नहीं, मतलब रिकवरी यू विल शो इट एज एन इनकम। अभी वापस अगर पैसे आ गए 1-2 महीने 1 साल बाद वो पैसे दे दिया आपने को, तो वी आर नॉट गोइंग टू डील विथ अमित नाउ, इट्स अवर न्यू फ्रेश इनकम, दैट्स कॉल्ड बैड डेट्स रिकवरी, दैट्स कॉल्ड बैड डेट्स रिकवरी। अगर आके पैसे दिए तो, जनरली कोई बिजनेस में देता नहीं है, उठा हुआ पार्टी गया तो गया, वापस आपको मिलता नहीं है, मिल गया कोई अच्छे दिल का इंसान है तो मिलेगा। So then the two accounts will be cash account and bad debts recovery. Cash and bad debts recovery. Like cash and commission, cash and rent, income. Cash is coming in, debit what comes in, credit all incomes in. That's your income. Like a lottery, you are not expecting and you got. Goods burnt by fire. Goods burnt by fire. Think about it. What should be the two accounts? Loss by fire and Loss by fire account to goods. Loss by fire and goods के जगह क्या लिखना? Goods lost by burn. fire. Goods burned by fire, goods lost by fire. What is the type? Lost by fire is nominal. Nominal expense. and goods lost by fire Real. 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 So That's debit it. all expense and credit what goes out. Out. So what type of expense is this? Just cash expense or non-cash expense? Goods lost by fire. Cash expense. Cash expense. Non-cash. non-cash. So being bad आपका debts goods from जल Amit के गया, बाद क्या आप लिखा किसी है? को जाके पैसा दोगे? Non-cash. नहीं Goods Non-cash. गया है ना, बिजनेस में से goods कम हो गया। Non-cash. मदर है non-cash. 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 एंट्री लिख दो या नॉन कैश लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट सर वो ऊपर अमित के बाद में क्या लिखा हुआ है? अकाउंट एसी Being bad debts from Amit. recorded, being bad debts from Amit recorded. Record मतलब बुक्स में एंटर किया, bad debt recorded. Next one is loss by account debit to goods lost by fire. Goods lost by fire account. ये रियल अकाउंट ही है, ओके? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गुड्स अकाउंट है, उसके जगह खाली डिटेल दिखाने के लिए लिख रहे हैं। तो लॉस बाय फायर टू गुड्स लॉस बाय फायर अमाउंट इज 3,900 being goods lost by fire. आपको ये समझ आया पक्का सबको? ये कैश एक्सपेंस नहीं है और नॉन कैश एक्सपेंस है। किसी को कंफ्यूजन इसमें कैश और नॉन कैश एक्सपेंस में समझ आया आपको? श्योर? अनुज को समझ रहा है? नेक्स्ट वन, आफ्टर 20th we have 21st. Received cash on account from Rahul. Very simple. Received cash on account from Rahul. What are the two accounts? Rahul account and cash. Rahul and cash. बराबर है? कैश आया राहुल से, तो कैश क्या होगा? आ रहा है तो डेबिट व्हाट comes in cash account debit and Rahul is the giver. So credit the giver. So cash account debit to Rahul account. क्यों पैसे देगा राहुल? ऐसे ही पैसे दे देगा? Business would have been done previously. Yeah, तो he is our debtor or creditor? Creditor.
डेटर आपने गुड्स बेचा है तो डेटर से आपको पैसा आ रहा है. सो राहुल इज अवर डेटर. मॉडर्न कंसेप्ट अप्लाई करो इस पे, कैश और राहुल पे. व्हाट इज कैश, व्हाट इज राहुल? both are assets. both are Both are assets. assets. Both are assets. Cash increased or decreased? Cash increase. Cash increased. So debit. Debit. Debtors. Rahul decrease. Decrease. Rahul So decrease. Debtor So decrease. credit. Okay, तो credit. पैसे आ गए तो अभी obviously कम हो जाएंगे पैसे लेने के उससे. That asset decrease. That asset decrease. Now, another example of non-cash expense. Goods distributed as free samples. 3 to 5. आपने थोड़े बहुत मोबाइल फोन डिस्ट्रीब्यूट कर दिए एज सैंपल कि भैया लो रखो मजा करो. क्यों करते हो फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट? Advertisement. एडवर्टाइजमेंट. तो थिंक नाउ व्हाट आर द टू अकाउंट? Advertisement account and goods Advertisement account. sample account. Goods. One is advertisement because you are giving the goods as sample. Now think about it. Are we giving goods or are we giving cash? अगर हमने एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस पे किया होता कैश में, होर्डिंग का खर्चा पे किया, बिलबोर्ड का खर्चा पे किया, तो फिर द टू अकाउंट वुड हैव बीन एडवर्टाइजमेंट एंड कैश. एडवर्टाइजमेंट समझ रहा क्यों एडवर्टाइजमेंट? हेलो, Yeah. फ्री सैंपल्स देखा होगा ना आपको. फ्री सैंपल्स कभी कभी कोई मिलता है फ्री में यूज करने को. ओके, फिर आप यूज करो, आपको अच्छा लगेगा तो आप और परचेज करोगे. ओके, सोप्स में होता है ये, देन वॉशिंग पाउडर में होता है, डिटर्जेंट्स में होता है. तो एडवर्टाइजमेंट के लिए होता है ये. तो वन एक्सपेंस इज एडवर्टाइजमेंट. नाउ आर वी गिविंग कैश और आर वी गिविंग गुड्स? Goods. गुड्स. सो ट्राई टू फ्रेम द जर्नल एंट्री. नाउ क्या होगा? Advertisement account debit to goods account. Debit to goods account. एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट. डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस टू गुड्स के जगह वापस गुड्स आ गया ना, तो पूरा For free samples account. हाँ, गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल्स अकाउंट. गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल अकाउंट. ओके, ये खाली हम लोग इंफॉर्मेशन के लिए दिखा रहे हैं. अल्टीमेटली वो एक ही अकाउंट है, स्टॉक. सब कुछ स्टॉक अकाउंट ही है वो. खाली हम लोग डिटेल दिखाने के लिए अलग अलग बता रहे हैं गुड्स के लिए. So advertisement to goods given as free sample. लॉजिक बैठा दिमाग में? खर्चा हो गया एडवर्टाइजमेंट एंड गुड्स जा रहा है. अच्छा, व्हाट टाइप ऑफ एक्सपेंस इज दिस? कैश और नॉन कैश? Non-cash. Non-cash. क्योंकि कैश इज नॉट गोइंग आउट, गुड्स आर गोइंग आउट, राइट? बट व्हाट इफ you would have paid advertisement expense? Paid then Then cash. Would have been Cash. cash account. then cash, then advertisement and cash. समझ में आ रहा है डिफरेंस कैश और नॉन कैश? So advertisement to goods distributed as free samples, that is 3250. 3250. These are being goods distributed as free samples. Being goods distributed as free samples. Okay, that completes the problem. Total अगर किसी ने किया है तो बता दो. 3,43,150. 3,43,150. Please check 3,43,150. Anyone else is getting this? Yes, sir. 343,150. Very good. So क्या सीखा इस प्रॉब्लम में हमने? कैश और नॉन कैश एक्सपेंस के बारे में सीखा, और दूसरा वही बैड डेट्स का एग्जांपल देखा. बैड डेट्स का एंट्री क्लियर है सबको? ट्रेडिशनल रूल फिट नहीं होगा बैड डेट्स में, मॉडर्न करना पड़ेगा. एक्सपेंस बढ़ रहा है तो डेबिट, एसेट घट रहा है तो क्रेडिट. इज दैट क्लियर? तो बैड डेट्स टू डेटर्स, ऑलवेज एंड ऑलवेज बैड डेट्स का एंट्री इज बैड डेट्स टू डेटर्स. गॉट इट? कैश आया तो कैश टू डेटर, और बैड डेट्स हुआ तो बैड डेट्स टू डेटर. ओके, नाउ नेक्स्ट सम आई वांट यू ऑल टू ट्राई 8th सम ऑन योर ओन. स्टार्ट करो सब लोग. अभी इसमें आपको बीच बीच में दिखेगा NEFT, RTGS, ECS. तो आपको कौन सा अकाउंट यूज करना है उसके लिए? Account. अगर आप पे कर रहे हो तो बैंक क्रेडिट, क्रेडिट द गिवर, और रिसीव कर रहे हो तो बैंक डेबिट, डेबिट द रिसीव. कैश नहीं आएगा, बैंक आएगा. कैश के जगह बैंक. ओके, NEFT, RTGS, ECS सुना है किसी ने? ECS, what is ECS? Yeah, it transfers from one bank account to another bank account. One bank to another bank, one company to another company, company to people. Okay, ECS is electronic clearance system. Electronic clearance system. Okay, तो ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे. वो भी सब बैंक, सबके लिए अकाउंट बैंक ही है आपका. okay? तो ट्राई करो. क्वेश्चन नंबर
8 करो, एकदम ध्यान से पढ़ना. अप्लाई ट्रेडिशनल, अप्लाई मॉडर्न, और जहां जहां NEFT, RTGS, ECS दिख जाए, IMPS दिख जाए, तो कैश मत यूज करना, बैंक यूज करना. कैश के जगह बैंक. पूरा करना है एक क्वेश्चन. पूरा पूरा फुल 8 क्वेश्चन करते जाओ. कुछ सही करना है आपको. I'll discuss that. This is the last question for the day. दिमाग लगाना, यू विल गेट द एंट्रीज. मैं डिस्कस करने वाला हूँ सब. Tomorrow I'm starting with a very important concept, trade discount and cash discount. Very, 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 very important one. सम का साइज देख के आपको थोड़ा आइडिया आएगा नेक्स्ट सम की. पूरा सम ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट पे बेस्ड है. फ्राइडे इवनिंग टेस्ट है, प्रिपेयर करना बराबर से. 7:30 to 8:30. उस दिन सुबह क्लास होगा. क्लास होगा ना, मॉर्निंग तो होगा ही, इवनिंग है टेस्ट. Go back to mute. You have no doubts then. Sir, Yes. in the second question, how to write the narration? Being furniture purchased by NEFT. Okay.
In statement we can write तो wrong नहीं मिलेगा ना. क्या? सिर्फ परचेज तक लिखेंगे और NEFT नहीं मेंशन करेंगे तो wrong हाँ नहीं हाँ, मिलेगा. being furniture purchased, then also it is fine. Being furniture purchased. in statement we can write NEFT RTGS ना. हाँ, yes. Narration na, narration you can write, yes. Narration, it is not a big deal. Don't worry about narration that much. You just convey the meaning, and question own words mein you can always write, no problem. Okay. Entry should be correct. You should get the entry right. Sir, what is Matri? Matri? Yeah, 14th January. अरे मैत्री नाम है यार. Maitri. Oh shit. First time I'm coming across this doubt. Matri. LF का लाइन की अगर नहीं बना तो मार्क्स कटेंगे. हाँ, मार्क्स कटेंगे. फॉर्मेट का पार्ट है, बना के खाली रखने का है उसको. शोभानो गाठियो छे. ओके, तुमको बुक्स में अगर पेज नंबर है तो लिखना पड़ेगा, लेकिन पेज नंबर्स देते नहीं है तो खाली रहता है वो. Are you understanding this NEFT RTGS thing? Instead of cash you have to use bank. Is that comfortable? रिसीव किया है तो कैश के जगह बैंक, पे किया है तो कैश के जगह बैंक. RTGS NEFT, ECS में भी चेक के जैसा ही है सब. Are you all comfortable till this point? 1 2 6 7 9 11 14. 14 तक क्लियर हो रहा है सबको? Any doubt anyone till 14? पूछते जाओ बीच बीच में. Don't copy, हाँ. This is just for practice and all. आपको कुछ भी क्लियर नहीं हुआ हो, नहीं समझा हो तो पूछ लो मेरे से.
पक्का जम रहा है सबको? विनीशा को जम रहा है? फोरम मालविया, पलक, कशिश, सर परचेज Yes. गुड्स फ्रॉम मैत्री तो दो अकाउंट रहेंगे ना, परचेज अकाउंट और मैत्री अकाउंट. Yes, purchase and Maitri, correct. Here you have to apply the rule. पार्टी का नाम दिया है ना, और कैश के बारे में कुछ नहीं दिया है. For cash, for check, RTGS, मतलब it's on credit. तो जो purchase 11th वाला सम था उसमें कैश नहीं आएगा, विशाल कैश account नहीं में आएगा, क्या? विशाल एंड सेल्स आएगा. क्योंकि देखो ना, यू हैव सोल्ड गुड्स, इज इट ऑन कैश और क्रेडिट, हाउ टू डिटरमाइन? उसके लिए दो कंडीशन है ना, पार्टी का नाम होना चाहिए चाहिए एंड और और नहीं है कैश तो फॉर मतलब कैश है, नहीं, नाम नहीं है. नाम है विशाल, ठीक है. रिसीव सोल्ड गुड्स टू विशाल है ना, सोल्ड टू विशाल गुड्स ऑफ 1000. पार्टी का नाम मतलब विशाल इज द पार्टीज नेम, यू हैव सोल्ड टू विशाल, राइट? पार्टी का नाम है एंड फॉर कैश फॉर चेक के बारे में कुछ नहीं दिया है ना, सो बोथ द कंडीशंस आर सैटिस्फाइड, so it's a credit transaction. Got it? Sir, if it had been sold goods or purchased goods, sold goods to Vishal for cash, तो then फिर कैश एंड सेल्स, तो फिर कैश एंड सेल्स, तो फिर कैश एंड सेल्स. ये फॉर कैश आ गया ना, सेकंड कंडीशन वायलेट, so then cash and sales. So Yeah. can we put the office cleaning charges into petty expenses? Sundry expenses, sundry petty भी चलेगा, petty भी चलेगा. क्लीनिंग चार्जेस चलेगा. Charges. क्लीनिंग चार्जेस में मत डालो, वो क्वेश्चन इसके लिए डाला हुआ है. आधे आपको बताया था, छोटे छोटे अकाउंट, हाँ, petty miscellaneous expenses. मिसलेनियस, जनरल, ये कोई भी एक हेड यूज कर सकते हो. पेटी एक्सपेंस भी चलेगा या सन्ड्री एक्सपेंस भी चलेगा. Okay. करेक्ट. स्मॉल अमाउंट का एक्सपेंस है वो बहुत. 18th आएगा उसमें, सन्ड्री petty- एक्सपेंस टू कैश आएगा ना. यस, सन्ड्री या पेटी एक्सपेंस. ओ सन्ड्री सर जनरल. पेटी कैश कहाँ पे यूज होता है? petty cash is used for small expenses. तो यहाँ पे sundry expense to petty cash एक्चुअली होना चाहिए एंट्री, बट अभी आप petty cash, अभी आप कैश ही लिखो. आगे petty cash का चैप्टर हम लोग डिटेल में करेंगे ना, तब बताएंगे वो petty cash की एंट्री. एक्चुअल एंट्री इसका sundry expense to petty cash ही होता है, छोटा अमाउंट है ना, तो यहाँ पे petty cash यूज होगा कैश की जगह. बट फिलहाल यू डोंट हैव दैट इन जर्नल, विल कम अक्रॉस इट डिफरेंट चैप्टर में, तभी हम लोग करेंगे डिटेल. अभी राइट डाउन सन्ड्री एक्सपेंस टू कैश या फिर जनरल एक्सपेंस टू कैश या फिर पेटी एक्सपेंस टू कैश चलेगा, दैट इज करेक्ट. बट डोंट यूज क्लीनिंग चार्जेस अकाउंट. छोटा छोटा अकाउंट जो होता है ना, सब्सक्रिप्शन टू न्यूज़पेपर, क्लीनिंग, स्वीपिंग, क्रॉकरी, एलईडी बल्ब्स, Packaging, transport. सन्ड्री एक्सपेंस. सॉरी, पैकेजिंग ट्रांसपोर्ट इज बड़ा. पैकेजिंग एक्सपेंस रहता है, ट्रांसपोर्ट का ट्रांसपोर्ट रहता है, ये टिप्स रहता है, चैरिटी, डोनेशन, ये सब. Refreshments, entertainment. रिफ्रेशमेंट, एंटरटेनमेंट, यस, यू कैन पुट इट अंडर सन्ड्री पेटी. यस, या. सर इन द 25th वन ECS कैश दिया है, उसमें क्या लिखना है? हाँ, ECS कैश तो बोलने का तरीका होता है, वो ECS मतलब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर है, तो बैंक ही लिखना है. ECS कैश देख के कंफ्यूज मत होना. ECS कैश मतलब वो इलेक्ट्रॉनिक. Sir, बैंक. या sir, या. what if the donation is of a huge amount? What if? डोनेशन जनरली तो इतना ह्यूज अमाउंट का नहीं होता है, क्योंकि बिजनेस नहीं तो उठ जाएगा, आप डोनेशन करते रहोगे तो. No, डोनेशन sir, even if 10,000, so that's not नहीं, a नहीं. petty cash. नहीं, दिस डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ बिजनेस ना. अभी छोटा बिजनेस है तो वो 1000 रुपए का डोनेशन करेगा, बड़ा बिजनेस है तो 10,000 करेगा. तो बड़ा बिजनेस के लिए 10,000 इज स्मॉल अमाउंट. गॉट इट? डोनेशन रिलेटिव टू बिजनेस ही रहता है, बट होता एब्सोल्यूट अमाउंट मत देखो, फिगर मत देखो 10,000 का है कि 1 लाख का है कि 100 का है. अभी रिलायंस वाला डोनेशन करेगा तो 10 लाख का भी करे, लेकिन उसके लिए 10 लाख इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट, तो जाएगा तो पेटी में. और हमारे बिजनेस के लिए 100 रुपया छोटा अमाउंट, वो जाएगा पेटी कैश. So on 31st of Jan, there are 4 entries. So do we have to write the date again for all 4? Yeah, for all 4. If you are following this format, okay. Yeah. Otherwise वो ऊपर Jan 2013 लिखा हुआ तो 31 नंबर ही लिखना पड़ेगा. अदरवाइज सबको इंडिविजुअल डेट देना पड़ेगा. यस.
एक ट्रिकी वाला है खाली, पेड हाउस रेंट. कैन यू सी दैट 31st का? Drawings. दैट इज ड्रॉइंग. बाय बिजनेस का घर होता है कि ओनर का घर होता है? Owner. ओनर का. तो यहाँ पे आपको हाउस रेंट दिखने का मतलब क्या है? ओनर ने बिजनेस में से पैसा विड्रॉ किया है. ओनर ने बिजनेस में से पैसा निकाला है, विड्रॉ किया है. दैट इज ड्रॉइंग. So received from Vishal via NEFT. So Vishal is credit the giver, right? Yeah. Correct. And bank is debit the receiver. So bank to Vishal. Correct. Kashish and Maya, you can leave if you want. So in ECS cash also we will have to put bank account. Yes, ECS cash is also bank account. ECS cash is also bank account. Thank you. So it is at 11:15. अच्छा 11:15 है. वेरी गुड. चलो बढ़िया. Yes. It's 20th है ना, उसमें it is written bought goods from Ashwini. तो bought goods will come for purchase, no? Purchases. Yes. Bought goods मतलब purchases. And is it on cash or credit? Vidushi? It is bought goods from Ashwini rupees. Nothing is specified, so it is credit. Credit. पार्टी का नाम है and for paid नहीं है, तो credit है. हाँ. Cash for check कुछ नहीं दिया है. हाँ. It is credit. So purchase to Ashwini. Debit all expense and credit the giver. That is worth 10,000. आ रहा है एंट्री सबको जम रहा है? Any issues? Anyone finding it very difficult? Please tell me. बढ़िया है. चलो. Yes. ECS के लिए भी बैंक. ECS के लिए भी बैंक. ECS कैश देख के कंफ्यूज मत हो ना, वो तरीका है देने का. ECS कैश. It means bank. Okay. Had a doubt? Anyone in between? Jash? समझ रहा है जश? Yes sir. करो ध्यान से करो. So for ECS cash, we have to write bank, na? Bank not only. cash. Not cash, bank only. Bank. कल आपको मैंने बोला है ना, क्या क्या बोला है रिसर्च करके आने को? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई और ECS भी करके आना. ECS, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड. सर्च इंटरनेट पे सर्च करो. जो क्वेश्चन आता है उसका समाधान ढूंढना चाहिए. डोंट कीप द क्वेश्चन पेंडिंग. ओके. You have Google, you have internet, you have so much of information available. Utilize that. Okay. We'll discuss that in tomorrow's lecture. So yes, electricity charges will be like a different account. Electricity or electricity, big expense. Electricity, telephone, rent, commission, separate account. But sir, yes, if we don't make the separate account for all this, means if we don't include in petty charges, then is it okay? We would get wrong.
Yeah, in this case you may get, because cleaning charges का कोई अकाउंट जनरली कोई भी बिजनेस नहीं करता, छोटे से छोटा बिजनेस भी नहीं करता है Sir, इसके लिए. sir, हाँ. electricity charges will come in what? Electricity is electricity only. Electricity expense. Electricity expense या electricity charges account debit. So, sir, office cleaning will come under sundry expenses. Sundry, general, miscellaneous, petty, anything you can write. Chota head, common head. Paid ECS cash to Ashwini में. Bank. So the bank would be debited, no debit or expenses. नहीं ओए बैंक पर्सनल है बापा, क्या थी क्या. Paid ECS cash to Ashwini, मतलब अश्विनी को हमने पैसा दिया. हाँ. So Ashwini would is be the debited, receiver. no? Debit the receiver. Yes, Ashwini. debit the receiver. Personal है ना. And हाँ. bank Credit is the what giver. goes Credit. out. Cash is credit what goes out. Bank है तो credit the giver. Personal है. Ashwini is the receiver. Bank is the giver. Ashwini to bank. Okay. Because she is your creditor. That's why you are settling her. Creditor है. Modern concept apply करोगे तो liability घटा तो debit और asset घटा तो credit. Bank घटा और Ashwini घटी. Ashwini is your creditor. Liability decrease, so it's debit, no? Yes, liability decrease, so debit. So Ashwini debit. And asset decrease, bank decrease, so credit. Sir, Yes. debit card account या bank account? Debit card. Bank. Debit card, credit card, ECS, RTGS, सबके लिए bank. Debit card account, check account कुछ नहीं होता, सब bank. Sir, Yes. in narration it is compulsory to mention whether it is ECS cash or any other. नहीं. किया तो ठीक है, नहीं तो paid received from अजय, paid to विजय चलेगा. Okay. नरेशंस में शॉर्ट फॉर्म भी चलते हैं. हाउस रेंट वाला सबको समझ आ रहा है क्या? हाउस रेंट, डोंट राइट हाउस रेंट टू कैश. हाउस रेंट इज नॉट बिजनेस का खर्चा. ओके, बिजनेस का घर नहीं होता. घर किसका होता है? ओनर का होता है. याद है हमने किया था लाइफ इंश्योरेंस पहले एक बार. वो भी आया था लाइफ इंश्योरेंस. Drawings to house rent account. No, drawings to cash. ड्रॉइंग्स टू कैश. इसका मतलब क्या कि ओनर ने हाउस रेंट का पैसा निकाला बिजनेस में से. ओनर इज टेकिंग अवे द मनी फॉर हाउस रेंट फ्रॉम द बिजनेस. ओके, पर्सनल से पे कर दिया ना तो इधर दिखेगा ही नहीं. इधर दिखा क्यों? इधर इसलिए दिखा क्योंकि ओनर टुक अवे द मनी. जैसे पता टप्पू की फीस पे की जेठालाल ने, तो ओनर टुक अवे मनी फ्रॉम बिजनेस. सो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश इज गोइंग आउट. क्या यूज कर रहा है, कैसे यूज कर रहा है, वी आर नॉट बॉदर्ड. ओनर लेके गया ना तो खत्म. ड्रॉइंग, वो नवरात्रि का डांडिया पास करे, कि हाउस रेंट पे करे, कि बेटे का शादी कराए, कि बच्ची की स्कूल फीस पे करे, कि जो भी पे करे, वी आर नॉट बॉदर्ड. ओनर इज द रिसीवर, कैश इज गोइंग आउट. Income tax also, right? Yes, income tax also. We'll come across that. आगे आएगा एग्जाम्पल में. Income tax is also drawings, correct.
Drawings is debit the receiver and cash is credit what goes out. Sir, but if it is a big company, the company will also have the income tax. But that is in case of company, right? We are dealing with a sole proprietor, single owner. If they mention that a big company's No, income you tax, don't have big companies accounts this year. You have it in 12th standard. So this year entirely you have sole proprietorship account, single sole proprietor. Next year partnership है. उसके बाद 12th के end में company start. तो ये साल तो आपको पूरा इनकम टैक्स है, ड्राइंग से ट्रीट करना है. So this one was important. इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को उसमें डालेंगे ना? इलेक्ट्रिसिटी नहीं छोटा नहीं है बॉस, बड़ा एक्सपेंस है बिजनेस का. इलेक्ट्रिसिटी के लिए नॉर्मल सेम अकाउंट है. इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस या इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट, टेलीफोन के लिए टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट. ओके, नॉर्मल अकाउंट. रेंट के लिए रेंट अकाउंट, कमीशन के लिए कमीशन. Yes. Bolo. Sir, can we leave now for Anand? Yes. Thank you. Welcome. Thank you. Sure. Welcome. Let's finish it off. Check the answers. Who got all correct? Tell me. Who got all correct? I got all. Sir, I got all correct. You can raise the hand on the screen. Screen पे हाथ raise करो. Who got all correct? All correct. All correct. All correct. All correct. बढ़िया. बाकी लोगों का जिसका मिस्टेक हुआ, मिस्टेक समझ में आ रहा है आपको? क्या क्या मिस्टेक किया आपने? ये आपका सोल्यूशन है, सामने पूरा देख लो. This is your solution. एक हाउस रेंट वाला was important and ECS cash was बैंक के थ्रू. चेक कर लो. बोलो, any doubts, anyone, any entry, ask. क्रेडिट और कैश का क्या रूल्स है, समझ में आया सबको? क्रेडिट एंड कैश. Okay, whenever you purchase or sell anything, that time you have to think about that. Party का name is given and nothing is given about cash. So it's on credit. Okay. RTGS, NEFT, ECS दिया है, डेबिट कार्ड दिया है, क्रेडिट कार्ड दिया है, सबके लिए कॉमन अकाउंट. What is that common account? बैंक अकाउंट. बैंक अकाउंट. All of you got that? निशांत को मिला सब, रुद्र को मिला, निशी, सब क्लियर हो रहा है? हर्षिता, अनुज को समझ रहा है? वीरती, महक, getting a grip? विराली, उर्मी खानिया. Okay, Krish, Bhanushali. Sir, can we leave? 1 second. One sir's lecture. 1 second. खाली ये कंप्लीट कर लो. ये हो गया सबका अभी. और आपको कल ये टर्म्स रिसर्च करके आने हैं और स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक का PDF सबके पास है. मैंने भेजा हुआ है ग्रुप पे भी. ठीक है, वापस भेजता हूं मैं. और उसमें से मैं आपको एक सम दूंगा पेज नंबर के साथ. ठीक है, वो आपका होमवर्क होगा. आई एम सेंडिंग यू इन 5 minutes दैट होमवर्क. वो आपको आज शाम को 7 to 8 के बीच में सबमिट करना है.